वेलकम टू श्रेया लॉग। 10th स्टैंडर्ड याद है किसी को? मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। 10th स्टैंडर्ड की साइंस की किताब में बायोलॉजी सेक्शन में एक चैप्टर हुआ करता था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओ माय गॉड, आई रिमेम्बर वो चैप्टर लोगों को इतना एम्बैरस कर देता था। अब जाके पता चल रहा है कि वो चैप्टर पूरे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता अगर उसे अच्छे से सबको समझाया और पढ़ाया जाता। मैं आई हूँ इंटरव्यू सीरीज लेके एक बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जो आप सबके पूछे हुए क्वेश्चंस का जवाब देने श्रेया लॉग पे स्पेशली आई हैं। आई रियली होप कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर सुन के आपके मन में भी जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो हियर वी गो। वेलकम डॉक्टर हेमा, थैंक यू सो मच कि आप श्रेया लॉग पे आई। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, कॉमन मिसकंसेप्शंस जो काफी हैं हमारे बीच फीमेल हाइजीन को लेके। स्पेशली बहुत सारे हमारे एज ग्रुप के स्पेशली लोग हैं जो गायना के पास जाना नहीं चाहते हैं या जा नहीं पाते हैं किसी कारणवश। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस इंटरव्यू को हम लाइव रिकॉर्ड करें एंड लोगों के सामने एज अ वीडियो लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स का है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हाइजीन को लेके। तो वेजाइनल हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जाए? No, this is a very good question. है ना? Vaginal hygiene should be maintained, and everyone should take care of vagina. First of all, I will like to stress upon menstrual hygiene. है ना? During menses, proper hygiene should be maintained. As सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में even educated people were using purana clothes for during periods. They are not using pads. So first of all, sanitary pad should be used during periods to maintain hygiene, because this is a time you may get infection through vagina. So menstrual hygiene is you have to stress upon menstrual hygiene, and use of sanitary pad should be promoted. This is one aspect. Another, use of undergarments. If you're wearing, don't wear tight undergarments. You're wearing panties, wear cotton clothes and loose clothes. Important. This is also important. And your vagina should be always, you should keep it dry. Whenever you go urination or defecation, you should try to clean your vagina and keep it dry. And another point, if a girl is sexually active, then she should try to use condom with her partner. Then this will also prevent from contracting any infection and keeping your vagina clean and hygiene. This is how vagina hygiene can be maintained. थैंक यू, थैंक यू। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो सुनने में आई कि गायनेक के पास जाना ही क्यों है, और अगर जाना है तो किस स्टेज पे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए और किन चीजों के बारे में जानने के लिए जाना चाहिए? हाँ, अगर फर्स्ट कब पहले बार जाना चाहिए, कोई लड़की हो, ये गर्ल है, शी इज गोइंग टू मेंस्ट्रुएट या शी इज एडोलेसेंट 11 to 12 years of age, she should go to gynec, because for counseling, now you are going to start your periods, now doctor will counsel her, उसको बताएंगी कि क्या इस दौरान क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए. And secondly, also sex education, it should be given by gynec doctor to this young lady. She should know everything, every aspect. So the first visit should be when she is going to start her period, that is menarche. Okay. I think this is the most important और time. आगे कब जाना चाहिए? आगे किस स्टेज when you are, पे जाना चाहिए? when if a girl is married, she is getting pregnant, then she has to consult doctor. Pregnancy में तो जरूरी visit करना चाहिए डॉक्टर्स को. या कोई तरह का infection है, कोई ऐसा चीज है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो you should consult on having any discharge like vaginal discharge, false swelling discharge, irregular bleedings. She may consult doctor. Or she wants to have any advice regarding contraception, she can consult. ओके, ओके। सो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ से के अराउंड भी जब भी कुछ भी इश्यूज होते हैं या कंफ्यूजन होता है, बिना गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर किए हुए या बात किए हुए कुछ भी हमें स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है? Toxic shock syndrome. This is a severe infection
It is mainly caused by a bacteria called Staph aureus. इसमें क्या होता है कि हाई फीवर होता है, वेरी हाई फीवर, lower blood pressure, and patient will have vomiting also, sometimes rashes all over the body. So this is caused by, is a severe infection. So this is it is called toxis because it involves whole of the body. So toxic shock syndrome is a serious condition, and Okay. it is mainly caused bacteria, Staph aureus. ओके ओके। वजाइना में कभी कभी फीमेल्स को काफी इचिंग होती है, तो ये इचिंग एग्जैक्टली क्यों होती है, और अगर ये इचिंग काफी सीवियर हो जाए, जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जो फीमेल्स बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए? एक्चुअली ये तुम्हारा पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ वेजाइनल हाइजीन का ही है ना, बिकॉज यू हैव, अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है तो नेचुरली इन्फेक्शन जा रहा है, इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन का एक सिम्टम है इचिंग बर्निंग सेंसेशन। तो इचिंग ऑफ वेजाइना अगर हो रहा है, दैट मीन्स यू आर हैविंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन, हम लोग उसको कैंडिडा भी कहते हैं, कैंडिडियासिस। तो इसमें हम लोग अगर इचिंग है तो नॉर्मली वी गिव क्लोट्रिबाजोल क्रीम एंड ऑल। अगर इससे नहीं ठीक हो रहा है स्टिल, देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। और भी कारण है, जैसे आप सेक्सुअली एक्टिव जैसे बताए गर्ल्स है, तो उसमें ड्यू टू मैंने पार्टनर्स के थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें अगेन कॉज इचिंग। इफ यू आर कीपिंग योर वजाइना मॉइस्ट, दिस में अगेन कॉज इचिंग। सो दिस ऑल द कॉजेज, अगर इस कॉजेज से अपने ठीक हो गया देन इट्स ऑल राइट। अगर इससे नहीं ठीक हुआ देन यू हैव टू गो फॉर गायनेकोलॉजिस्ट for further investigation, because in elderly lady it might be sugar के चलते भी itching होता है। If there's diabetes, high level of sugar, then you can have itching in vagina. So if you are not if इससे आराम नहीं होता है, then you have to consult your doctor. श्योर। मार्केट में काफी सारे ऐसे इंटीमेट केयर प्रोडक्ट्स आए हुए हैं जो कहते हैं, दावा करते हैं कि इचिंग नहीं होगा, पीएच मेंटेन रहेगा। क्या हमें ये प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट प्रेफर करते हैं? देखो एक्चुअली जो मार्केट में बोलते हैं वो सब प्रोडक्ट तो जनरली यूज नहीं करना चाहिए अनलेस अंटिल तुम्हारा डॉक्टर नहीं बता रहा है तो, बिकॉज उन लोग क्या यूज कर रहा है ये नहीं है। डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई प्रोडक्ट यूज करो, वो ज्यादा बेटर है ना, वो बेटर है। बिकॉज दे ऑल आर क्लेमिंग कि अच्छा है वो अच्छा, लेकिन अनलेस अंटिल कोई डॉक्टर नहीं बताए, डोंट यूज इट। जी बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, ऐसे कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो एक औरत ले सकती है अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट आयरन, आयरन जरूर लेना चाहिए, बिकॉज देखो ईच मेंसेस में 35 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है। तो आयरन, खून की कमी गर्ल्स में बहुत कॉमन है, एनीमिया जिसको कहते हैं, इसलिए गर्ल्स शुड टेक 1 टैबलेट ऑफ आयरन ईच डे, आई थिंक इज अ मेन सप्लीमेंट फ्रॉम माई साइड। और मल्टीविटामिन इस सब का तो कोई भी रोल नहीं है, इसलिए आयरन शुड बी गिवन टू ऑल ग्रोइंग गर्ल्स, या लेडीज को भी देना चाहिए, बिकॉज दे डोंट टेक इनफ फूड जिसमें आयरन हो, है ना। ये फूड भी ले सकती हैं साथ में, लेकिन मेन एक आयरन जरूर देना चाहिए टैबलेट्स। फूड्स में जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, एक एप्पल लें, है ना, नट्स लें, और खजूर जो बोल डेट्स, ये सब में आयरन ज़्यादा है। आई विल सप्लीमेंट आयरन। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमा हमारे चैनल पे आने के लिए। क्वेश्चंस इतने सारे हैं, लेकिन हमें सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा इस वीडियो को। Okay. तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम जरूर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन श्रेया लॉग। आई रियली होप फ्रेंड्स कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की जो 2 वीडियोस मैं डॉक्टर हेमा के साथ करने वाली हूँ वो आप आसानी से पहले होंगे देखने वाले। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू श्रेया लॉग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।